So let me have the pleasure of welcoming Dr. Tarunendu Singh, Chief Agriculture Officer, IFFCO. May I request all of you to please put your hands together as I request his very kind presence here on stage with us. Thank you so very much, Dr. Singh. What a pleasure having you here. May I request you to please take a seat and be a part of this very, very interesting conversation right here. Thank you. Dr. Singh, today we're in this very interesting journey and era and times of where farmers are not just evolving, but they're going way beyond just cultivating. We're now talking about entrepreneurship. We're now talking about innovation. And we're now talking about how is it that we can make life a lot more empowering. So if I was to ask you, what are the key policy interventions that you feel or you would like to see to further empower Indian farmers? Definitely the policy measures I can only suggest, because the clear thing should be that the kind of competition that we are facing, it should be lesser at the bottom and more at the top. So the bottom competition in terms of the resources is something we need, that policy measures should be there. The important matter there is for the agri-input side is water. Water is the key resource, and in fact we are saying that there is overwatering and there's underwatering also. So definitely we have to first of all concentrate on water, which is a key resource for farming. And as you know, that we look towards the sky or the monsoon, and if monsoon is good, everything is good, and we rush for the other agri inputs, including credit also. So the water proofing or water resource mapping, and also having focus on that particular water-based conservation measures. It could be mulching, it could be through fertigation, it could be through drip irrigation. So water is the key resource. And policy should be there where you see that nobody is disempowered to get water for their crops. Other thing could be the seed. Seed has to be quality proof, and there should be no bungling with the quality measures, and there should be really giving what you call value for the money. If farmer is investing, is paying for the seeds, he should be able to get the right output. So definitely second one is the seed. So policy should be there that nobody is deprived, farmers definitely, of good quality seeds in whatever quantity they require. So we should have that ecosystem where we get the right kind of seed. Followed by fertilizers. Yes, fertilizers have to be there in plenty, but not that plenty that you should go on misusing it. So there should be policy of encouragement of right measures of fertilizer application. And definitely you have to go for innovative solutions here, because one size doesn't fit all. See that the farmer should be the decision maker, so he should get the right feel of the technologies. Technology should not be imposed on the farmers, they should get the right measure. After that you come to the other kind of inputs which could be there. And also, therefore, we talk about farm to fork. So definitely the end market is another important option that we have to be very careful about. And the end thing is that customer is looking for solutions, he is even Googling and getting things from abroad. So why can't it be here? So if somebody is looking for chia seeds, if somebody is looking for some kind of dragon fruit, some kind of luxury is there, or some kind of medicinal aromatic plant, why can't we pull it? So Bharat Vistar is certainly a right step in that direction. But please, we have to ensure that the right kind of implementation is key to success. So the kind of implementation that should go in sync with the policy measures, and also perfect monitoring. Because sometimes we see that there are jargons in things and they are not deciphering at the farmer's level. So we have to see that farmer knows that this is thing for me. There should be a general platform where he could interact with all these kind of policy measures. And if he applies for a thing, he should be empowered, or capacity building should be there, how to get best use of all these services or the policy measures which are there. And also, ultimately, the kind of money or the kind of the field that he is getting out of that, because nobody does anything for charity. So survival is at stake, and farming is really a very risky business. And we have to see that climate also comes into picture now. So there are so many things which are there, good policy measures are there. The issue is about implementation.
So you spoke of a lot of these policy measures, and like you said, that we too need to work on implementing these in the right manner. But if I was to also ask you about the systematic changes that you believe that we can have, especially if we talk about long-term sustainable measures and initiating that and educating farmers more and more on that segment. First of all, the key word is complacency. For example, if we have enough water, we misuse it. If we have enough fertilizer, we misuse it. So complacency should not be there. We should take adequate measures at the right time. And for that, you should go for innovation. And definitely we have to see that the ecosystem thrives and we all are part of that ecosystem. So in totality, what I want to say from this is that we have to be in sync with each other. There should be what you call interconnectivity, or the departments should be looking at the things in a very holistic manner, and there should be interdepartmental cohesion in these things. So definitely we are going to, if we have got a purpose, we got a focus, we are going to achieve it. Innovation is certainly important. I just give you one example. Neem coated was there, neem coating urea. So neem oil was in scarcity. So IFCO took an initiative and we've gone to FRA Dehradun to bring dwarf varieties and also varieties which have high aza content. And the flowering and fruiting takes place within 2 to 3 years. So this kind of measure was there, but tissue culture in getting the right kind of plants and tissue culture for that particular, getting the 6 varieties multiplication is becoming a key challenge. So you have the solutions, but how to let the farmer be benefited from that options, we have to look into that. Also the tree-based agar wood is there. The tree-based economies are going to thrive. So definitely there are many aspects to these issues. We have to be keen observer and also bring out the right holistic measures which ultimately benefit the farmers and the nation at large. Thank you so very much for your time. A round of applause as I thank Dr. Singh for his very kind presence. You spoke about innovation, and as I thank you, I want to share with you that our next segment is going to talk about how more and more farmers are inculcating that. So thank you so very much. And like I mentioned, that our next segment is going to touch upon how more and more farmers today are adopting innovative measures. May I request all of you to please put your hands together as I welcome on stage the Mushroom Lady of Haryana. Please put your hands together for Dr. Sonia Dahiya, not just a progressive farmer, but a PhD and a biotech teacher. Please do welcome her. What a pleasure to meet you in person and to have you join in. First of all, for those of you who believe that you can create something of your own and take it to an X level, I think a round of applause for Dr. Sonia Dahiya. Let's hear it up for her once again. Dr. Dahiya, you happen to be someone who, in COVID times when people weren't sure of how things are going about, you were very sure that you wanted to start something of your own, not just for yourself, but for women of your village. And when this idea where you combined your knowledge of the biotech field to cultivating mushroom and the varieties to today growing to a way that you can put together 10,000 mushrooms every month is absolutely brilliant. How did this journey sort of come to life for you? First of all, thank you so much, Times Group, for inviting me for this wonderful talk with you. और मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी लोग सीट छोड़ के जा चुके हैं. अभी तो असली बारी आई थी स्पीकर की, अभी आप लोग चले गए हैं. बिकॉज वी एज मैंशनड इन द टाइमलाइन दैट वी आर द वॉइस ऑफ द ग्राउंड. सो मुझे लगता है काफ़ी लोग होने चाहिए थे, बहुत से लोग जा चुके हैं. एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन टू मी. और अभी जब मैं यहाँ आई से थोड़ी देर पहले इतना वंडरफुल मैंने सबका डिस्कशन देखा, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे. तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कुछ तैयारी कर ले, सब इतना अच्छा बोल रहे हैं. तो मुझे उस बात पे हंसी आ रही है. सॉरी, आई कुड बी फनी समटाइम्स. जो आपने मुझे बोला अभी मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा, तो ये जो मेरी जर्नी रही है कोविड टाइम से सिंस अभी तक, ये बहुत अप एंड डाउन से गई है. आप सपोज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, आई कैन सी लॉट्स ऑफ वुमेन आउट देयर. तो जो एक जर्नी है एज ए वुमेन, एज ए मदर, एज ए टीचर, और बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे अभी हम देख रहे हैं जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा वे ऑफ लैंग्वेज है, हम जहाँ रहते हैं हम उसी तरीके से बन जाते हैं. मैं एक MSc PhD हूँ बायोटेक्नोलॉजी से.
और मैं पिछले 15 साल से डिक्रस्ट मूर्थल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी रही हूँ। लेकिन एकदम से आपका जो एकेडमिक जर्नी से यू जस्ट स्विच टू अ डिफरेंट जर्नी लाइक टू फार्मर, और आपका इंटरेक्शन किससे होगा? लेबर से। दिन रात जो इंटरेक्शन आपका लेबर से रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, सब कुछ है, बट स्टिल द अपॉर्चुनिटी जो एक फार्मिंग ने मुझे दी है, जो एक पहचान दी है MSc PhD से, एक मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिकॉज बहुत सारे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा भी गूगल कर लीजिए। अगर फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो फार्मिंग है वो आपकी पहचान बन सकती है। आपको एक सिर्फ़ और सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं, आपको एक पहचान भी देती है, और आपके साथ साथ आपकी कम्युनिटी, आपकी फैटर्निटी, आपकी जितनी भी जो लोग हैं वो भी ग्रो करते हैं साथ के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, ये प्लेटफॉर्म जो है फार्मर्स के लिए है, और फार्मर्स जितने भी काम कर रहे हैं, जो एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी सुनी, जो कीवर्ड्स जैसे मैंने सुने, डाइवर्सिफिकेशन है, सस्टेनेबिलिटी है और वैल्यू एडिशन है, लेकिन मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि किसी ने भी मशरूम फार्मिंग के बारे में बात नहीं करी। मशरूम फार्मिंग आई थिंक इज़ द सुपर फूड और दी फ्यूचर क्रॉप दैट कुड बी फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर, जो हो सकता है हमारे लिए। किसी ने बात नहीं करी। देखिए, बहुत छोटा सा जो मुझे लग रहा है टाइम मुझे मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, और मैं एक टीचर हूँ, मेरी आदत है 40 से 50 मिनट में टॉपिक को कवर करने की, तो इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जो बातें कहना चाहूँगी, मैं ये कहूँगी कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन फार्मर जो मुझे मिसिंग लगा इस टॉपिक से, थोड़ा सा हमें वुमेन फार्मर्स के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग इटसेल्फ जो है एक बहुत ही टफ जॉब है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। लेकिन जो वुमेन्स के लिए तो इतना टफ है कि मैं बता नहीं सकती। कभी आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसे बता भी दूंगी जी। लेकिन दूसरी बात जो है हमारी जो एग्रीकल्चर की है, ऑफ कोर्स वी नीड जो है डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, और जो वैल्यू एडिशन वाले जो कीवर्ड्स जो सभी की बातों में थी, रिजिलियंस लगा लो, अब बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स थे जो कि चैलेंजेस और क्राइसिस सभी के लिए हैं, सारी एग्रीकल्चर के लिए है। तो मुझे लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन पे तो आना ही चाहिए, लेकिन जो एक फ्यूचर क्रॉप है, हमारा मशरूम इंडस्ट्री है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे हमारे डिग्निटरीज़ हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं पोडियम पर, नीचे जो भी हमारे डायस पर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मशरूम कल्टीवेशन जो है उसको भी आप अपनी पॉलिसीज़ में और इनमें इन्वॉल्व कीजिए, वुमेन फार्मर को इन्वॉल्व कीजिए, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ टू यू मैम। डॉक्टर सोनिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया कि किस तरह इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं विमेन पावर और विमेन फार्मर्स के बारे में बात करने के लिए, और आपने बहुत बार अपनी बातों के ज़रिए बताया भी है, दर्शाया भी है, और आप इसमें काम भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं कि चाहे आपकी कम्युनिटी हो, चाहे आपकी विलेज हो, आपके आसपास जितनी विमेन हैं आप उन्हें ना सिर्फ एम्पावर कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, पर मशरूम फार्मिंग का हिस्सा भी बना रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ ये बात शेयर ज़रूर करें कि किस तरह आपने और ज़्यादा विमेन फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया और उन्हें एजुकेट किया इस फील्ड में। देखिए, वुमेन्स जो कि फार्मिंग में जुड़ी हुई हैं, जो फार्मिंग सेक्टर से जो आता है, ज़्यादातर लेबर क्लास की इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर वाले फेज़ में नहीं है, वो भी लेबर वाले फॉर्म में है। 60 to 80% जो है, जो वर्क फोर्स है हमारा एग्रीकल्चर में, वो लेबर है, वुमेन लेबर जिसे हम कह रहे हैं, और वो बहुत ही जिसे कहते हैं शाई भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी पुअर हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ काम करना कई बार डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उन लोगों को काम के लिए जोड़ना, कभी हमें लगता है कई बार जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, कि जैसे तुरंत हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन आपको लेबर भी नहीं मिलती है कई बार काम के लिए। जब आप काम करने के लिए निकलते हो तो उसको जोड़ना, लोगों की कड़ी जोड़ना, मेरे से कम हज़ारों जो वुमेन्स हैं और जो फार्मर्स हैं वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं मशरूम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। बहुत सारे KVK से जुड़ी हुई हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, हर जगह मैं लेक्चर देने जाती हूँ। सभी जगह काम करना और बात करना बहुत आसान है, लेकिन एक लेबर के साथ डील करना, उसको काम जोड़ना, उसको स्किल्ड करना, वो बड़ा ही कई बार टफ हो जाता है। और जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सभी जो चीज़ आती है ना, वो आती है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, लिटरली उन लोगों को हाथ पकड़कर सिखाना पड़ता है। मेरे साथ अभी जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, 40-50 जो काम कर रही हैं, जो किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है मेरे साथ, एक कम्युनिटी बनी हुई है हमारी, तो उसको मैंने बड़ी ही एक जिसे कहते हैं हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ संजोया, यहाँ तक लेके आई हूँ इस जर्नी को 5 साल। इसीलिए शायद मुझे ये एक टैगलाइन मिल गया है, मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा। ये तो मेरा इतना टर्नओवर भी नहीं है कि मशरूम लेडी का टैग मिले, ना ही मेरा कोई इतना बड़ा काम है,
लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस और जो महिलाओं के लिए काम किया है, जैसे उनके साथ जुड़ी हूँ, खेत में उतरी हूँ उनके साथ और हाथ पकड़कर काम किया है, मैंने खुद भी काम किया, मैं खुद भी काम करती हूँ, तो वो जो चीज़ है ना वो आपको इंस्पिरेशन देती है, सेल्फ मोटिवेशन देती है और काम करने की एक प्रेरणा भी देती है। हमारी यही आशा है कि इसी तरह आप काम करते रहें, इसी तरह आपकी कमाई भी बढ़ती रहे। और मेरा ये मानना है कि टर्नओवर की या बिजनेस की स्टेचर पे पहुंचा है उसकी बात नहीं है, जो आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन की ओर हो या और ज़्यादा महिलाओं को आप अपने साथ जोड़ रही हैं, वो हिम्मत रखना, कुछ कर दिखाना, वो ही अपने आप में बहुत है। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए एज आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक डॉक्टर सोनिया दहिया फॉर बीइंग हियर। और हम आशा करते हैं कि हमारे देश में आप जैसे और भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स जुड़े और इस देश का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी बहुत बधाई। थैंक यू। प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लाइंस मैंने कल परसों ही बहुत सारी याद करी हैं, हो सकती हैं कहीं अटक भी जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। महिला किसान के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी, क्योंकि मेन तौर पर तो अगर हम वॉइस ऑफ फार्मर्स हैं तो मुझे उनके भी हाथ पर बोलना चाहिए। औरत जब खेत में काम करती है तो वो सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो अपने सपने भी बोती है। हर फसल के साथ वो अपने आत्मविश्वास को उगाती है। नारी जब खेत संभालती है तो किस्मत भी बदल जाती है। उसकी हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। उसके हाथों में मिट्टी है पर उसकी सोच आसमान छूती है। उसके आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है, क्योंकि नारी सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो एक नई दुनिया बनाती है। और जब एक महिला किसान मुस्कुराती है ना तो उसके साथ उसका पूरा परिवार खिल उठता है। उसकी मेहनत की खुशबू हर घर तक पहुंचती है, क्योंकि नारी सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो एक नई दुनिया भी बनाती है। और जब एक महिला किसान आगे तरक्की करती है तभी सही मायनों में देश विकास की ओर तरक्की करता है। थैंक यू सो मच। और हमारा देश मोस्ट डेफिनेटली विकास की ओर तरक्की कर रहा है, क्योंकि आप जैसी महिलाएं इस देश का हिस्सा हैं। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर सोनिया दहिया के लिए। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। इनके बेटा साहब भी यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त उनके चेहरे की मुस्कुराहट एक अलग ही प्राइड दर्शा रही है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू टू सर। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दिनेश कुमार जी को, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, राष्ट्रपति जी से अवार्ड भी वो हासिल कर चुके हैं और एक पायनियर माने जाते हैं सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। तो जोरदार तालियों के साथ आइए इस मंच पर हम उनका अभिनंदन करें। और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे बीच आए। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बातों से यहाँ पर हम सभी के साथ जरूर शेयर करें कि किस तरह आज जहाँ एक और आप पैडी बोते थे और आज आपने खुद तो सीखा ही, साथ में आप और भी किसानों को समझा रहे हैं कि पानी, जैसा हमने बोला कि वाटर रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसे हम जितनी ज़्यादा सेव करके यूज़ करें वो बेहतर होता है। और किस तरह आपने डाइवर्सिफाई किया और आपने सोचा कि क्यों ना हम बेबी कॉर्न और ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की भी बचत हो और हर कुछ महीनों बाद हम अपनी फसल जो है वो बदलें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सोच आपके बीच में कहाँ से आई और आपने जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन, आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव मनोली, जिला सोनीपत का मैं किसान हूँ। जो अभी मेरे से सवाल किया गया है पानी बचाने का, दरअसल हमारा जो गांव है बिल्कुल यमुना किनारे है, बहुत पानी है, बहुत पानी है। 98 तक जो हमने खेती की, अपने जो हमारे पिताजी या जो पूर्वज करते आए थे, धान और गेहूँ, मेरे इलाके में पूरा इलाका सोनीपत का लगभग धान और गेहूँ में था। वहीं से एक छोटी सी इंस्पिरेशन मिली थी कि भी हम और हमारे कई साथी भी बैठे हुए हैं हमारी FPO के, कि भी हम कुछ अलग करेंगे। ग्रेजुएशन करके मैं जब खेती में आया तो देखा कि भी धान और गेहूँ बहुत ही 15, 20, 25 हज़ार रुपये एकड़ की खेती हम करते थे। और किसान की जो देखने की सोच थी वो यही थी। किसान को सब बहुत ही वो पुअर समझते थे कि भाई किसान उतना लेवल का हो नहीं सकता जो जिस लेवल पे कोई भी पढ़ा लिखा है, IIT डॉक्टर या कोई भी एक मैनेजर बैठता है। तो हमने खेती को ऐसे लेवल पे लेके आएंगे
कि लोग पूछेंगे कि भाई हाँ, किसान का भी कोई लेवल होता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं बताऊंगा। जब राष्ट्रपति जी अवार्ड दे रहे थे तो मैं भी सूट पहन के चला गया, तो वो अवार्ड उन्होंने वापसी ले लिया, कहने लगे आप किसान ही नहीं लग रहे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी बता दिया जाए। उनको बताया कि जी मेरी सोच यही है कि क्या किसान ब्लेजर या सूट पहन के खेत में, गाड़ी लेके खेत में नहीं जा सकता। मैं आज खेती के उस लेवल को मैं और मेरे साथी लेके आ चुके हैं कि जहां 20-30 हज़ार रुपये एकड़ की इनकम थी, हम वहां 10-10 लाख रुपए एकड़ तक कमा सकते हैं। उस लेवल पर हम खेती को लेके गए। और जमुना किनारे का गाँव था जी, धान गेहूँ को बिल्कुल रिमूव करा दिया है पूरे इलाके से, और वहाँ पे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। और 2001 से आप समझ रहे होंगे कि स्वीट कॉर्न आप अमेरिकन कॉर्न या कहीं और का खा रहे हो, वो जी मैं आपको बता दूं मनोली गांव का है, जिसको हम 2001 में लेके आए थे। और बड़े हमने पापड़ बेले थे उसको सक्सेस करने में, 5 साल लगे, बहुत घाटा गया। और आज वो उत्तर भारत की बहुत अच्छी क्रॉप है, पानी बचा रही है जी। 3 पानी में धान गेहूँ बिल्कुल उसने वहाँ से हटा दिया जी। दिनेश जी, मैं पिछली बारी आपसे मिली थी तो आपने स्वीट कॉर्न का बास्केट बना के गिफ्ट भी किया था, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप उसको चखेंगे तो उसका स्वाद ऐसा ही है, ऐसा अनुभव होगा कि आप बाहर के किसी देश का खा रहे हैं। लेकिन कहते हैं सोच बदलना बहुत कठिन है, और आपने अपनी ही नहीं, अपने आसपास की नहीं, पूरे इलाके की सोच बदली है। ट्रेडिशनल खेती से आपने प्रोग्रेसिव एक सोच आप लेकर आए, तो वो जो आपकी जर्नी है वो कैसे इवॉल्व हुई और वो कैसे रही? देखो, सोशल फाइट गांव में बहुत करनी होती है जी। अगर कोई नया काम करता है तो उसकी टांग बहुत खींचते हैं लोग, और काम करने में भी उतनी परेशानी होती है। लेकिन हम उन चीज़ों के, क्योंकि हमारे जो ना बराबर सोच के साथी कई तैयार हो गए थे, तो हमने ग्रुप बना लिया था, और ग्रुप बना के हम उन चीज़ों से एट पार निकल गए। चाहे वो हमारी जो जर्नी रही है उसमें पॉली हाउस भी एक बहुत बड़ा जो है ना पिलर साबित हुए हैं, और उसमें हमने इनकम को बहुत बढ़ाया है जी। और ये सोच भी बदली है कि वही जो आपने फ़ोटो में देखा होगा कि फार्मर एक फ़ोटो है, उसके अंदर उसकी बेचारे की धोती फटी हुई है, ज़मीन में दरार खिल रही है, उसकी इमेज ये थी। वो इमेज तोड़नी बहुत ज़रूरी थी कि फार्मर भी एक एंटरप्रेन्योर, एग्रीप्रेन्योर हो सकता है। तो उसके लिए टेक्निकल फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी था, इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। बगैर पैसे के तो देखो कुछ हो नहीं सकता, आप अपने आप को उठा नहीं सकते। और हमने ये था कि भाई सच्चाई है कि किसान ग्राउंड लेवल पे भी, डॉक्टर सोनिया दहिया ने जो बताया, बहुत सारे चैलेंज है किसानों के लिए, जो शायद यहाँ चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्लाइमेट से लेके, लेबर से लेके, और बहुत सारे ऐसे चैलेंज हैं। अभी मैं एक एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, अभी के ब्लैक थ्रिप्स की भी बात कर रहे थे वो लोग। ब्लैक थ्रिप्स इतना बड़ा चैलेंज है इस टाइम इंडिया के अंदर, कोई उसकी मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और किसान अपनी फसल को ऐसे ही बहा रहे हैं। जो भी सब्जियों की जो खेती है, तो चैलेंज तो बहुत है और उनसे निकलते हुए। लेकिन हमें ये है कि भाई किसान है, किसानी से ऊपर लेके उसको एग्रीप्रेन्योर कैसे बनाना है, ये सीखना बड़ा जरूरी है, सोच बदलनी बड़ी जरूरी जी बिल्कुल। और जीते जागते कई अभी पलवल के फार्मर मिले कि आपने जो स्वीट कॉर्न का हमें बताया, हमने अपने यहीं पे मार्केट डेवलप कर दी उसकी, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपके साथियों को भी। और यही आशा करते हैं कि इसी तरह हम स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ सकें और माइंडसेट्स भी चेंज कर सकें। तो जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर।